الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس لیکچر کے اختتام پہ ہم اسم اور حرف کو اس لیول تک یعنی کہ لیول 1 تک مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر سے ہم فعل کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اسم کا ہمارا ایک ٹاپک ہے جو کہ رہ گیا ہے، جسے ہم اسم موصول کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم فعل کو پڑھنے کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ وہ ہمیں اس وقت زیادہ بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گا۔ آج انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنا سکتے ہیں، جملہ اسمیہ کو ہم ایک ایسا جملہ کیسے بنا سکتے ہیں کہ جس کے اندر سوال پوچھا گیا ہو۔ دیکھیے، اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ سوالات بنیادی طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات آپ ہاں یا نہیں میں دے سکتے ہیں، جن کے جوابات آپ یس یا نو میں دے سکتے ہیں، اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات آپ یس یا نو میں نہیں دے سکتے۔ وہ سوالات کہ جن کے جوابات آپ یس یا نو میں دے سکتے ہیں، ان سوالات کو پوچھنے کے لیے ہمارے پاس دو حروف ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں، انہیں ہم حروف استفہام کہتے ہیں۔ یہ دو حروف کون کون سے ہیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا تو ہے حمزہ زبر والا، یعنی کہ آ، اور دوسرا ہے حل، آ اور حل۔ ان دونوں کے بارے میں ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ یہ دونوں انٹرچینجبل ہیں، ان کے استعمال کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مقام پہ آپ نے آ استعمال کرنا ہے اور کسی دوسرے مقام پہ آپ نے حل استعمال کرنا ہے، بلکہ یہ جس مقام پہ بھی آپ چاہیں حل استعمال کر سکتے ہیں، کسی دوسرے مقام پہ چاہیں تو آ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ریسٹرکشنز نہیں۔ دوسری بات جو کہ ذہن نشین رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے استعمال سے کسی بھی قسم کی کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی، جملے کے اندر الفاظ کی حالت ان کا سٹیٹس چینج نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا، جملہ ہے ھذا قلم، یعنی کہ یہ قلم ہے۔ اب اس جملے کو آپ نے سوالیہ جملہ بنانا ہے، تو دیکھیے آپ اسے کہہ سکتے ہیں اھذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ تو دیکھیے، جب آپ نے یہ کہا کیا یہ قلم ہے، تو اس کا جواب آپ ہاں یا نہیں میں دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ قلم ہے، نہیں یہ قلم نہیں ہے، تو دیکھیے اس کا جواب آپ ہاں یا نہیں میں دے سکتے ہیں، ہاں یا نہیں۔ لہٰذا ایسے سوال کے لیے آپ آ یا حل کو استعمال کر سکتے ہیں، اھذا قلم یا حل ھذا قلم، اھذا قلم یا حل ھذا قلم۔ اب کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب آپ ہاں یا نہیں میں نہیں دے سکتے، جن کا جواب یس یا نو میں نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ، یہ کیا ہے؟ What is this؟ اب دیکھیے، اس کے جواب میں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یا نہیں۔ بالکل ایسے ہی ایک سوال اگر کیا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس کا جواب بھی آپ ہاں یا نہیں میں نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو کہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سوالات کہ جن کے جوابات آپ ہاں یا نہیں میں نہیں دے سکتے، عربی میں ان کے لیے یعنی کہ ان جملوں کو سوالیہ جملہ بنانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم اسماء استفہام کہتے ہیں۔ اسماء استفہام، ایسا اسم جو کہ سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسماء استفہام بہت سارے ہیں، لیکن ہم ان میں سے صرف وہ پڑھیں گے کہ جو کہ قرآن کریم فرقان حمید میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق بھی، چونکہ یہ اسم ہے تو ان کے متعلق بھی چار باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اسم کا جنس کیا ہے، اسم کا عدد کیا ہے، اسم کی وسعت اور گنجائش اس میں کتنی ہے، اور اسم کس حالت میں ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں بھی ان چار باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں پہ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ جتنے بھی اسماء استفہام ہیں یہ سارے کے سارے نکرہ ہوا کرتے ہیں، اسماء استفہام نکرہ ہوا کرتے ہیں، لہٰذا یہ معرفہ تو ہوں گے ہی نہیں۔ دوسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عاد کے علاوہ سارے کے سارے اسماء استفہام یہ مبنی ہیں۔ ایک عاد کے علاوہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عاد ہی ہوں گے جو کہ معرب ہوں گے، باقی تمام کے تمام آپ کو ہمیشہ ایک ہی شکل میں ایک ہی صورت میں دکھائی دیں گے۔ اور تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے برابر ہیں،
जिन्स और अदद के एतबार से सारे के सारे बराबर हैं, यानी कि चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस, चाहे वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा हो, सब के लिए जो माए इस्तिफहाम इस्तेमाल होंगे वो उनके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी, चूंकि ये मबनी है तो लिहाजा उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। अब इंशाअल्लाह हम एक एक करके उन अस्माए इस्तिफहाम को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इस्तिफहाम के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा वो है माँ। माँ, माँ के माना है क्या, या इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं व्हाट, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तब इसके लिए देखिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है माँ, क्या, जिसे हम अगर अरबी में कहेंगे तो कहेंगे मा हाजा, ये क्या है। अब देखिए अरबी में सवालिया लफ्ज शुरू में आएगा, ये एक कायदा है कि जिसे आपने ज़हन में रखना है कि अरबी में जो सवालिया लफ्ज होगा, ये जो अस्मा इस्तिफाम होंगे ये इब्तिदा में आएंगे, ये शुरू में आएंगे। जैसे मैंने भी कहा मा हाजा, तो हाजा से पहले ये लफ्ज मा आया। दूसरी बात यह है कि अरबी में कोई लफ्ज है के लिए मौजूद नहीं होता। जब मैंने कहा मा हाजा तो ये है आपने खुद लगा दिया, ये क्या है। तो ये क्या के अल्फाज तो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन है का लफ्ज मौजूद नहीं है, ये आपने खुद से लगाना होता है। अब हम कुरान करीम फुरकान हमीद से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मल क़ारिआ, अल क़ारिअतु मल क़ारिआ, क्या है क़ारिआ। दूसरी आयत वमा अदराक मल क़ारिआ, और तुमने क्या जाना कि क्या है क़ारिआ। तीसरी आयत मुक़द्दसा वमा अदराक मा हिया, और तुमने क्या जाना कि क्या है वो। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और तुमने क्या जाना कि क्या है लैलतुल क़द्र। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, और ए मूसा तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है। तो देखिए यहाँ पे तमाम आयात मुक़द्दसा के अंदर लफ्ज माँ इस्तेमाल हुआ, और ये माँ सवालिया है, इस्तिफहामिया है, क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है मन। मन के माना है हु, इंग्लिश में हु और उर्दू में कौन। मिसाल के तौर पे तुम कौन हो, हु आर यू, मन अंता, तुम कौन। अब देखिए यहाँ पे भी मन पहले इस्तेमाल हुआ। कुरान करीम फुरकान हमीद से अगर आप एग्जांपल देखें तो मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़रदन हसनन फ़युضाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा, कि कौन है जो कि अल्लाह तबारक व तआला को बेहतरीन कर्ज दे, बस अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा दे उसके लिए उस कर्ज को, यानी कि जो उसने अल्लाह ताला को दिया है उसे उसके लिए कई गुना बढ़ा दे। दूसरी आयत मुकद्दसा में मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, यहाँ पे भी देखिए लफ्ज मन आया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कौन है कि जो कि शफाअत कर सके उसकी बारगाह में बगैर उसके इज़्न के, यानी कि सिवाय उसके कि जिसने उसे इज़्न दिया हो, उसके अलावा कौन है जो कि उसकी बारगाह में शफाअत कर सके। अगला लफ्ज देखते हैं कैफा। कैफा का माना है कैसे, इंग्लिश में हाउ। कुरान करीम फुरकान हमीद से आयत मुकद्दसा कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, कैसे इनकार कर सकते हो तुम अल्लाह का, व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, और थे तुम मुर्दा बस उसने तुम्हें जिंदा किया, उसने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। तो देखिए यहाँ पे भी लफ्ज कैफ इस्तेमाल हुआ, कैफ तकफुरून, कैसे इनकार कर सकते हो तुम अल्लाह। अगली आयत मुकद्दसा देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या आपने ना देखा कि कैसा हाल किया आपके रब ने आद का, यानी कि आद के साथ कैसा मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। दूसरी आयत मुकद्दसा में अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने कैसा मामला फरमाया है असहाबे फील के साथ, फील यानी कि हाथी वालों के साथ। देखिए यहाँ पर भी कैफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसके माना कैसा के हैं। अगला जो इस्तिफाम के लिए इसम है वो है आईना। आईना का माना है कहाँ,
इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं वेयर। कुरान करीम फुरकान हमीद की अगर आप आयत मुक़द्दसा देखेंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र। उस दिन इंसान कहेगा कि भागने की, छुपने की, फरार की जगह कहाँ है। अयनल मफ़र, कहाँ है फरार की जगह। अगली आयत मुक़द्दसा है वयौम युनादीहिम अयन शुरकाई। और जिस दिन वो उन्हें निदा फरमाएगा मेरे शरीक कहाँ हैं। अयना शुरकाई, कहाँ है मेरे शरीक। अगला लफ्ज है मता। मता के माना है कब, इंग्लिश में व्हेन। कुरान से इसकी एग्जाम्पल वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन। और वो कहते हैं कि ये वादा कब आएगा अगर तुम सच्चे हो। और एक दूसरी आयत मुक़द्दसा है मता नस्रुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। देखिए यहाँ पे लफ्ज मता कब के माना में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद जो लफ्ज है वो है कम। कम के माना होते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, या कितना। कुरान करीम फुरकान हमीद से एग्जाम्पल देखते हैं क़ाल कम लबिस्त, ने कहा कि तुम कितना अरसा ठहरे रहे हो। क़ाल कम लबिस्त, तुम कितना अरसा ठहरे रहे हो। वकम मिन क़रियतिन अहलकना, और कितनी ही बस्तियां हैं कि जो कि हलाक कर दी हैं हमने। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है और कितनी ही बस्तियां हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक फरमा दिया है। इसके बाद जो लफ्ज है वो है अय्याना। अय्याना के माना होते हैं कब, वेन। जैसे कि मता के माना भी कब और वेन के होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अय्याना के माना भी कब और वेन के हैं। कुरान से अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, सवाल करते हैं कि कब आएगा वो कयामत का दिन। यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, कब आएगा वो कयामत का दिन। अगली आयत मुक़द्दसा यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, कि तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब वाक़े होगी। यहाँ पे भी देखिए अय्याना कब के माना में कि वो कब वाक़े होगी। अगला लफ्ज देखते हैं अय्यू। अय्यू, अब अय्यू के मुतालिक कुछ बातें हमें थोड़ी सी जहन नशीन करनी होंगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि अय्यू का जो माना है वो कौन सा, कौन से या विच के हैं। दूसरी जो बुनियादी बात अय्यू के बारे में जो आपने जहन नशीन रखनी है वो ये है कि अय्यू मुअरब है, ये मबनी नहीं है, ये मुअरब है। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर एराबी तब्दीलियां होंगी, ये एराबी तब्दीलियों को कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि ये मुदाफ बनकर आएगा, यानी कि इस पर अलिफ लाम भी नहीं आएगा और इस पर तनवीन भी नहीं आएगी। ये हमेशा मुदाफ बन के आएगा, तो इसके बाद वाला यकीनन मुदाफुन अलैह होगा। आयत मुक़द्दसा देखते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अब देखिए यहाँ पे लियब्लुवकुम के बाद अय्युकुम का लफ्ज है। अय्यु मुदाफ होके आता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये मुदाफ है और कुम ज़मीर मुदाफ़ुन अलैह है। नकिरा के बाद मारफ़ा आ रहा है, मुदाफ मुदाफ अलैह है। अय्यु, अब देखिए इसका माना है कौन सा, कौन से, या विच। कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा का माना क्या हुआ। अल्लज़ी खलक़ल मौता, वो कि जिसने पैदा किया, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो वही है कि जिसने पैदा किया मौत को और हयात को, ताकि आजमाए वो तुम्हें कि कौन तुम में से अमल के एतबार से ज्यादा बेहतर है, यानी कि कौन तुम में से अच्छे अमाल करता है, यानी कि कौन सा शख्स ऐसा है तुम में से जो कि अच्छा अमाल करता है। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं मिन अय्यि शैइन खलक़ा। अब देखिए यहाँ पे अय्यी, आप देखिए वो अय्यू लफ्ज था लेकिन मिन के बाद आया। हम जानते हैं मिन हरफ जर है, हरफ जर के बाद जो भी इसम आता है वो हालत जरी में चला जाता है। अब देखिए चूंकि ये मुअरब था लिहाजा इसने हालत को हालत जरी में जाने को कबूल भी किया और ये नजर भी आ रहा है हमें। मिन अय्यि शैइन खलक़ा, कि किस चीज से, कौन सी चीज से तख्लीक किया उसको, यानी कि इंसान की बात हो रही है कि इंसान गौर तो करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे कौन सी चीज से तख्लीक किया है। अगला लफ्ज देखते हैं अन्ना। अन्ना, अन्ना के माना है फ्रॉम वेयर, कहां से, कहां से। कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा
قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آیا تیرے لیے یہ، یعنی کہ جو رزق ان کے پاس موجود تھا اس رزق کی جانب حضرت زکریہ علیہ السلام اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فعل سے متعلق معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔